السلام علیکم ناظرین، کچھ دن پہلے امریکہ ایران پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا سب سے بڑا حملہ کرنے جا رہا تھا اور آج امریکہ اسی ایران کو ایک نئی ڈیل پیش کر رہا ہے۔ جی ہاں، حملے کی جگہ اب ڈیل پیش کی جا رہی ہے اور سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ حملہ کرنے والا اچانک ڈیل کرنے لگا ہے؟ اس کا جواب ایک ہی لفظ میں ہے، وہ ہے ایران کی مزاحمت۔ ایران نے جھکنے سے انکار کیا اور اب وہ ڈیل جو میز پہ ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے باقی جگہوں سے سن لیا ہو کہ ایران اور امریکہ ایک نئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس ڈیل میں فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے وہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے۔ حماس نے اپنے ہتھیار ڈالنے پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، نہ جانے اس کو اتنا ڈاؤن پلے کیوں کیا گیا۔ یہاں پر آپ کو پوری سچائی ملے گی، لیکن یہ سب کیسے ہوا، کن شرطوں پہ ہوا، کن شرطوں پہ حماس راضی ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک اور حیران کن خبر ہے، غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اسرائیل اب اپنی سچائی پیسوں سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس کو لوگ چاہیے، آپ جیسے ہم جیسے، جو پیسے لے کر یہ بتائیں کہ نہیں غزہ میں کچھ نہیں ہوا تھا، اسرائیل تو معصوم ہے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں، آپ کو پتا ہے کہ سبسکرپشن اس چینل کی بالکل مفت ہے، آپ کو صرف اور صرف سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد آپ ہر وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ پائے گی جو کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ میں لائیو بھی آتا ہوں تقریباً ہر دوسرے دن، اور وہاں پر آ کے لائیو آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ کی کالز لیتا ہوں لائیو۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو، یا اس کے علاوہ میرا پرسنل لائف کا جتنا بھی انٹریکشن ہے وہ فیس بک پہ ہوتا ہے، تو آپ نے فیس بک چینل کو صرف فالو نہیں کرنا ہے، آپ نے سبسکرپشن بھی کرنی ہے، اس کی سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ڈیل کی کہانی کی بات کرتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران اور عمان ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس ڈیل کی شرطیں بہت دلچسپ ہیں اور تجزیہ کار ہے ماریو نوفل، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے یہ ڈیل کیسے کام کرے گی۔ دیکھیں، جو جہاز خلیج میں داخل ہوں گے وہ ایران کے ساحل کے قریب اس کے کنٹرول والے رستے سے گزریں گے۔ اب آپ نے دھیان سے سننی ہے بات، ورنہ اوپر سے نکل جائے گی۔ جو جہاز ایران کے خلیج میں شامل ہوں گے، خلیج میں انٹر آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ ایران کے ساحل کے قریب والے رستے سے آئیں گے، اور جو جہاز خلیج سے باہر جائیں گے وہ عمان کے قریب والے رستے سے جو ہے وہ گزر کے جائیں گے۔ کاغذ پہ یہ برابر کا سودا لگتا ہے، آدھا ایران کے پاس آدھا عمان کے پاس، ہرمز ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ماریو نوفل کہتے ہیں کہ حقیقت اس کے الٹ ہے، اور دھیان سے سمجھیے کیونکہ یہ اس پوری ڈیل کا اصل راز ہے۔ ہرمز میں اصل طاقت باہر جانے والے رستے میں ہے، نہ کہ اندر آنے والے رستے میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو جہاز باہر جاتے ہیں وہ تیل سے بھرے ہوتے ہیں، وہی تیل جو پوری دنیا کی معیشت چلاتا ہے۔ اب اگر ان بھرے جہازوں کو روکا جائے تو تیل کی قیمتیں ایک ہی رات میں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو جہاز اندر آتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، وہ تو تیل بھرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ تو خالی ہوں گے، ان کو روکنے سے کوئی بڑا جھٹکا نہیں لگے گا۔ اب سمجھیے یہ بالکل ایسا ہے جیسے دو لوگ ایک دکان چلا رہے ہوں، ایک کے پاس جو ہے وہ خالی تھیلے اندر لانے کا کام ہو اور دوسرے کے پاس بھرے ہوئے تھیلے باہر بھیجنے کا۔ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس جو بھرے ہوئے تھیلے کنٹرول کرتا ہے، اور عمان یہ چاہتا تھا کہ کنٹرول آدھا آدھا ہو، 50-50، لیکن ایران نے اس کو رد کر دیا کیونکہ ایران یہ جانتا ہے ناظرین کہ صرف اندر آنے والے رستے کا کنٹرول اس سے اس کا سب سے بڑا ہتھیار چھین لے گا۔ اور ایران کے دو اور خدشے بھی ہیں۔ پہلا، ایران خود بھی اپنا تیل بیچتا ہے، اور اگر باہر جانے والے رستے کا کنٹرول عمان کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایران جو ہے وہ ایک ایسے پڑوسی پہ منحصر ہو جائے گا جس کے تعلقات واشنگٹن اور باقی خلیجی ممالک سے ایران سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ یعنی ایران اپنا تیل بھیجنے کے لیے ایک ایسے ملک پہ بھروسہ کرے جو اس سے اتنا قریب نہیں جتنا وہ اس کے دشمنوں سے قریب ہے۔ اور دوسرا خدشہ کیا ہے؟ یہ صرف فیس کا یا یوں کہہ لیں کہ انسپیکشن کی بات نہیں ہے، یہ لیوریج کی بات۔ لیوریج کیا ہوتا ہے؟ لیوریج وہ طاقت ہے جس سے آپ دوسروں پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ باہر جانے والے جہازوں کا کنٹرول ایران کو عالمی تیل کی مارکیٹ پہ اثر ڈالنے کی اور بحران کے وقت اپنی بات منوانے کی لیوریج یعنی طاقت دیتا ہے۔ اسی لیے
ईरान के लिए यह सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं है, यह उसकी सबसे बड़ी चाबी है। और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक माहिर हैं अली वाइज, उन्होंने इस पूरे मामले का निचोड़ बयान किया। वो कहते हैं कि ईरान के लिए हुर्मुज़ पे यह कंट्रोल इस पूरी जंग से उसकी वाहिद हकीकी कामयाबी है, और अगर यह डील हो गई तो ईरान जंग से पहले की पोजीशन से भी बेहतर जगह पर पहुंच जाएगा। अब जरा इस बात को समझिए, एक जंग जो ईरान को कमजोर करने के लिए शुरू की गई थी, उस जंग के बाद पहले से भी मजबूत वो हो सकता है। और इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है, डील के दो हिस्से, पहला जहाज, दूसरा ईरान का यूरेनियम। ईरान के पास तकरीबन 11 टन अफजोदा यूरेनियम है, 11 टन, और अमेरिका चाहता है कि ईरान इसको कम कर दे, डाइल्यूट कर दे। लेकिन नौफल कहते हैं कि तरतीब से चीजें हल हो रही हैं। उससे पता चलता है कि ट्रंप का जहन कहां पर बैठा हुआ है, पहले जहाज बाद में यूरेनियम। यानी ट्रंप चाहता है कि पहले हुर्मुज़ का फैसला हो जाए, यूरेनियम की देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं और तेल की कीमतें वो वोटों पर असर डालती हैं। 11 टन यूरेनियम नहीं डालेगा, तेल की कीमतें डालेंगी वोटों पर असर। यानी ट्रंप की पहली फिक्र अमन नहीं है, बल्कि वो अपने इलेक्शन जीतना चाहता है या इलेक्शन सरवाइव करना चाहता है। अब इस पूरे मामले में एक और मुल्क आ गया दोस्तों, फिर से पाकिस्तान। अल अरेबिया ने यह खबर ब्रेक की है कि ईरान के दो सबसे अहम लोगों को इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान ने बुलाया है। ईरान के वजीर खारजा अराक्ची और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबाफ। मकसद अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात पे बात करना, यानी पाकिस्तान एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए दोबारा आपको लाइमलाइट में अगले चंद दिनों में नजर आएगा। और ये पाकिस्तान की उस पॉलिसी के एन मुताबिक है जिसमें वो किसी की तरफ खड़े होने के बजाय सालिस बनना चाहता है। अब मैं आपको लेके आता हूं मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बड़ी खबर और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, वो ये है जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था। हमास ने अपने हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यह ऐलान बोर्ड ऑफ पीस ने किया है, जो अमेरिका की सरपरस्ती में काम कर रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के बारे में मुताबिक बार बता चुका हूं कि वो क्या है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। और ट्रंप ने इसको अमन की तरफ एक तारीखी कदम कहा है। अब जरा समझ जाइए कि यह डील क्या है। डील के मुताबिक हमास और दूसरे मुसल्लह गिरोह अपने हथियार एक कौमी कमेटी के हवाले करेंगे। हल्के हथियार, भारी हथियार और सुरंगें जो हमास ने बनाई थी, वो ये सब बैनुल-अक़वामी निगरानी में होगा। लेकिन नाज़रीन, यह शर्तें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल कहानी इन्हीं शर्तों में छुपी हुई है। पहली और सबसे अहम शर्त, हमास ने साफ कहा है कि हथियार इजराइल के हवाले नहीं किए जाएंगे, बल्कि सिर्फ उस कौमी कमेटी के जो फलस्तीनियों की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी शर्त, हमास का कहना है कि यह अमल दोनों तरफ से साथ साथ चलेगा। जैसे जैसे हमास हथियार वापस करेगी, वैसे वैसे इजराइल गजा से अपनी फौज निकालेगा। और बोर्ड ऑफ पीस का कहना है कि इजराइल गजा से पूरी तरह तभी निकलेगा जब हथियार पूरी तरह डीकमीशन हो जाएंगे, यानी हमास सारे हथियार हवाले कर देगी। अब यहां पर इसमें एक पुरपेच, एक मोड़ आ गया। दोनों फरीक चाहते हैं कि दूसरा पहले अपना काम करे। इजराइल चाहता है हमास पहले हथियार डाले, और हमास चाहता है कि इजराइल पहले निकले। और यहां पर एक अहम बात है, खुद नेतन्याहू के दफ्तर ने इस डील की मुखालिफत की। यानी एक तरफ ट्रंप इसे तारीखी कह रहा है, दूसरी जानिब नेतन्याहू जो इसका फरीक है वो उससे खुश नहीं है। इसीलिए ये डील अभी कागज पर है, जमीन पे आने पे, उसको ग्राउंड वर्क होने पे अभी टाइम लगेगा और बहुत सी रुकावटें भी लगेंगी। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जो सच में आपको सोचने पे मजबूर करेगी। गजा में जो कुछ हुआ नाज़रीन, अब देखें ना किस तरह से इजराइल मैनिपुलेट करना चाह रहा है कौम आलम की जुबान को और उनकी सोच को। जो कुछ हुआ उसके बाद इजराइल एक नई जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन यह जंग बंदूकों से नहीं, यह जंग आपकी सोच से लड़ी जाएगी। ड्रॉप साइट बहुत काबिल एतबार इदारा है, उसकी न्यूज है जो एक तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सामने आई। तकरीबन $40.5 मिलियन इजराइल खर्च करने जा रहा है। किस लिए? इंटरनेट को अपने हक में खबरों से भरने के लिए। आप समझ रहे हैं? और इस मुहिम की जो क़यादत है एक ऐसा शख्स कर रहा है जो पहले ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का मैनेजर था, ब्रैड प्रैस्किल। अब समझिए ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये बहुत चालाक तरीका होता है। अच्छा, आप जानते हैं कि आजकल लोग किसी भी सवाल का जवाब एआई से पूछते हैं।
चैट जीपीटी से पूछेंगे, बाकी जगहों से पूछेंगे, गूगल से भी पूछे तो उसके बीच एआई ही सेक्शन से पूछते हैं, जैसे चैटबॉट्स हो गए। और ये एआई अपने जवाब इंटरनेट की वेबसाइट से उठाता है, वो खुद से नहीं सोचता। याद रखिएगा इजराइल ने क्या किया है, उसने एक पूरा जाल बनाया है 10 अलग अलग वेबसाइट्स का, और इन पे सैकड़ों ऐसे मज़ामीन लिखे जो इजराइल को एक अमन पसंद मुल्क दिखाते हैं और गजा के हकायक पे शकू को शुभात पैदा करते हैं। लेकिन असल चाल यहां पर यह है जो बड़े गौर से सुननी है, ये वेबसाइट्स आम लोगों के लिए बनाई ही नहीं गई हैं। इन पे महीने में सिर्फ चंद सौ लोग आते हैं, और फिर ये किस लिए बनाई गई? अब सोचने वाली बात है, सिर्फ चंद सौ लोग आते हैं। ये वेबसाइट्स बेसिकली एआई के लिए बनाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इजराइल चाहता है कि जब एआई अपनी ट्रेनिंग के लिए इंटरनेट को पढ़े तो वो ये झूठे मज़ामीन पढ़े जिसको वो सच समझ ले, और फिर वो जवाब जो आम लोग होते हैं उनको इजराइल के हक में जवाब दे। इसे माहिरीन LLM पॉइजनिंग कहते हैं, यानी एआई के जहन में जहर घोल देना। ये कितना खतरनाक काम है, सबसे खतर, और इससे भी खतरनाक बात, ड्रॉप साइट के मुताबिक ये काम कर रहा है। इट्स एक्चुअली वर्किंग। कुछ एआई पहले ही इन वेबसाइट्स का हवाला देने लगे हैं। अब इसकी गहराई को देखिए। इजराइल गजा में जो हुआ है और जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी सच्चाई बदल नहीं सकता। वो तो दाग उसके सीने पे लगा रहेगा, लेकिन वो उस सच्चाई को आने वाली नस्लों की नजर में बदलने की कोशिश कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए जो आपके हमारे बच्चे कल इस्तेमाल करेंगे, या हो सकता है अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो। और ये एक नई तरह की जंग है, जहां मैदान जो है, फील्ड, बैटल फील्ड, वो आपका जहन है। अब आपने बड़ा मुहतात रहना है। इसीलिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं, आपको मैं बता नहीं सकता कितनी मुश्किल से बनाता हूं। ये रिसर्च कितनी मुश्किल से मिलती है। आपको क्या लगता है कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेट पर जो, या उसके मजालिम के खिलाफ जो इंटरनेट पर मवाद इतनी आसानी से मिल जाता है? बहुत मुश्किल से मिलता है, मेहनत करना पड़ती है कई घंटों। तो इसलिए बार बार कहता हूं सब्सक्राइब किया करें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, साथ रहे मेरा। जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं आपको एग्जैक्टली वैसे दूंगा जैसे रिपोर्ट हुई है। नाज़रीन, अल जजीरा की वेबसाइट पाकिस्तान में बंद हो गई है। क्यों? आपको पता है कि आजाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन हुए हैं, और उन इलेक्शंस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बॉयकॉट हो चुका। अल जजीरा के रिपोर्टर हैं कमाल हैदर, उन्होंने मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट दी कि वोट वाले दिन सड़कें तकरीबन खाली थी, और जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक जून से अब तक उस इलाके में काफी हलाकतें भी हो चुकी हैं। और इस रिपोर्ट के अगले ही दिन अल जजीरा की वेबसाइट पाकिस्तान में बंद कर दी गई, बंद हो गई। हुकूमत ने इससे पहले अल जजीरा की कवरेज को जब्त यानी येलो जर्नलिज्म कहा था। ये मोहसिन नकवी साहब के ही बयान है अगर मैं गलत नहीं हूं। और साथ ही गैर मुल्की सहाफियों के लिए यह शर्त लगा दी कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाहर काम करने के लिए उनको NOC लेना पड़ेगा। अब यहां पर डेफिनेटली मैं आपको अपनी राय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो रिपोर्ट हुआ है, और ये मीडिया और कवरेज का एक मामला है जो हर मुल्क में मुख्तलिफ होता है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से, कहा यह जा रहा है, अगेन तनकीद की जा रही है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने जिस तरह से पाबंदी लगाई है उस पर नुक्ता चीनी हो रही है। और आखिर में एक तजिया आपको देता हूं जो इस पूरी कहानी को समअप कर देगा। होता क्या है? इजरायली तजियाकार है, उनका नाम है डैनी स्क्रिचनोविच, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं। वो बड़ा एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए कि मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, और वो बात क्या है? वो कहते हैं कि ट्रंप चाहे कुछ भी कहे या कितनी भी धमकी दे, ईरान के रवैये में पीछे हटने का कोई इशारा नहीं। और उनकी असल बात वो ये है कि जब धमकी के पीछे अमल करने की नीयत ना हो तो धमकी अपनी कीमत खो देती है। ट्रंप की तरफ इशारा है। अब इसको समझिए। फर्ज कीजिए एक उस्ताद रोज एक शरारती बच्चे से कहेगा अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन सजा कभी ना दे, तो कुछ दिनों में बच्चे के दिल से धमकी का डर उतर जाएगा। टैनी कहते हैं कि अमेरिका के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। ट्रंप ने धमकी दी कि जब भी ईरान जहाजों पर हमला करेगा उसका पावर प्लांट या पुल उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद ईरान ने 5 हमले किए और अमेरिका ने एक बार भी उस धमकी पर अमल नहीं किया। आगे डैनी निचोड़ देते हैं कि अब अमेरिका के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो जमीन की हकीकत को कबूल कर ले और अपनी पॉलिसी बदल ले, या फिर एक बहुत बड़ी, महंगी और लंबी, ना खत्म होने वाली जंग शुरू करे जिसकी जीत की कोई जमानत नहीं है। और वो कहते हैं कि हिकमत अमली हमेशा हकीकत को वैसा कबूल करने से शुरू होती है जैसी वो हो, ना कि वैसा जैसा कि तुम चाहते हो।
اور شاید یہی آج کی پوری کہانی کا سبق ہے دوستو. چاہے وہ ہرمز کی ڈیل ہو, چاہے غزہ کی, یا پھر سچائی کو خریدنے کی کوشش جو کہ اسرائیل کر رہا ہے, ہر جگہ ایک ہی اصول کام کرے گا کہ آپ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کچھ عرصے کے لیے چھپا سکتے ہیں, آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو موڑ سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے, کیونکہ آخر میں حقیقت واپس آ جاتی ہے. اور جو اس سے نظریں چراتا ہے, سب سے زیادہ وہی نقصان میں ہوتا ہے. دوستو, تو اب تک کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ناظرین. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایک دفعہ پھر فیس بک پر اگر آپ مجھ سے لائیو انٹریکشن رکھنا چاہتے ہیں ہر طرح کا, تو وہاں پر آپ نے پیج کو صرف فالو نہیں کرنا, سبسکرائب بھی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.